Hello everyone, welcome back to your maths class. Students, in previous class you have completed till question number 13. Now let's start with the question number 14 of exercise 3B. Question number 14 is 3,600 soldiers are asked to stand in different rows. Every row has as many soldiers as there are rows. For example, we have 4 rows 1 2 3 4. क्या बोला है इन्होंने? एवरी रो हैज़ एज मैनी सोल्जर्स एज देयर आर रोज. मतलब अगर 4 रोज हैं तो हर एक रो में 4 ही सोल्जर्स होंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. इफ़ यू काउंट देम, अगर आप उनको काउंट करोगे 4 + 4 + 4 + 4. This is repeated addition. This can also be written as 4 × 4 16. जब आप इनको add करोगे you will get 16, right? So how we can find it? अगर हम number of rows को each row में number of soldiers से multiply कर दें, we will get the number of soldiers which they have given in the question, right? So हमें number of rows निकालनी है. number of rows हमें पता नहीं है, so मान लेते हैं ये rows क्या है? x है. So let the number of rows are x. अब अगर number of rows x हैं, जैसे 4 rows में 4 ही soldiers थे ना each row में, similarly अगर x rows हैं तो each row में कितने soldiers होंगे? x, right? number of soldiers अगर 4 थे तो हमने क्या किया? 4 rows को each row में जितने soldiers थे उससे multiply किया था. Similarly अगर x rows हैं और each row में x ही soldiers हैं, then to find the number of soldiers we will multiply x by x. और आपको पता है जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं we add their powers, right? x means x raised to the power 1, x means x raised to the power 1. When we will multiply them, their power will be added. 1 + 1 2, so it will become x square. But according to the question they have given number of soldiers are 3,600. और हमारे अकॉर्डिंग क्या है? x स्क्वायर है. ये भी नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, ये भी नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं. सो वी कैन से दैट दीज टू आर इक्वल. हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 3,600. वाई? बिकॉज बोथ आर नंबर ऑफ सोल्जर्स. दोनों नंबर ऑफ सोल्जर्स ही हैं. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो व्हेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, it will become square root 3,600, right? हम यही करते हैं. अगर हमें स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमें सिंगल x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? we will find the square root, right? square root of 3,600. I am using long division method here. Make the pairs. 6 6 36. Subtract 0, copy down the next pair, 0 0. Add these two, 6 + 6 12. Now you have zeros. आपको पता है ज़ीरो के लिए क्या चाहिए? ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करना होगा. 0 0 0, right? So the square root of 3,600 is 60. This is the value of x, right? And what were they asking in the question? Question में क्या पूछा था? Number of rows, right? And number of rows कितने माने थे हमने? x. And this is the value of x. So number of rows are 60. Clear? Now the question number 15. Find the perimeter of square. This is the square, right? Now we don't know its side. मान लेते हैं साइड क्या है? x है. ये साइड भी, ये साइड भी, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है. तो अगर एक साइड इक्वल है तो ऑल रिमेनिंग साइड्स विल बी इक्वल, राइट? सो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x. अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, साइड इनटू साइड, राइट? एंड व्हाट इज साइड हियर? साइड क्या ली है हमने? x. सो पुट x इनटू x. And as you have done in previous question, जब हम x और x को मल्टीप्लाई करेंगे their power will be added.
x means x raised to the power 1, x means x raised to the power 1, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. हमारे अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इज 6889. सो वी कैन से दैट दीज टू विल बी इक्वल. हम इनको इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही तो चीज़ हैं, दोनों एरिया ही हैं स्क्वायर के, वो भी सेम स्क्वायर के, राइट. So to find the value of x, you will find the square root of the 6889 meter square. Now find here 6889. Make the pairs. 8 8s are 64. Subtract 4 is remaining. Copy down the next pair 89. Add these two, 8 plus 8, 16. Last digit is 9, which is possible when there is 3. So multiply it by 3. 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 1s are 3, plus 1 4. So the square root of 6889 is 83. So the value of x is 83. And this is meter square. Meter square का मतलब क्या होता है, meter multiply meter. Right, so when it will come out from the square root से बाहर आते हुए क्या करते हैं, हम पेयर में से सिंगल वैल्यू ले लेते हैं. सो इट्स वैल्यू विल बी m, राइट. सो इट विल बी इन मीटर्स. वैल्यू ऑफ x इज 83 meters. and what was x? x means the length of each side. but what were they asking in the question? Perimeter. हमें अब क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, एंड वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर. सो फ्रॉम दिस साइड वी कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर. फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड. यही होता है, राइट. सो पुट द वैल्यू 4 into साइड इज 83, विच वी हैव रिसेंटली कैलकुलेटेड, 83 meters. Multiply them, 4 3s are 12, 4 8s are 32, plus 1 33 meters. This is the perimeter of the given square, and this is your answer. Next question, question number 17. A society collected rupees 8836. सोसाइटी ने टोटल इतना अमाउंट कलेक्ट किया है. Each member contributing as many rupees as there were members. स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा हमेशा स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में as many as इस टाइप से कुछ आ जाता है ना. ये थोड़ा सा आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्या बोला है इन्होंने, हर एक मेंबर, सपोज 4 मेंबर्स हैं यहाँ पर, हर एक मेंबर उतने ही रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है जितने मेंबर्स हैं. अगर 4 मेंबर्स हैं सो हर एक मेंबर कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा, 4 4 4 4. तो क्या करेंगे, हर एक मेंबर के अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 16. सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 14, उन्होंने बोल ही दिया कि जितने मेंबर है उतने ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट, ईच मेंबर से. सो मान लेते हैं मेंबर्स कितने हैं, x. ईच मेंबर कंट्रीब्यूटिंग, सेम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर 4 मेंबर्स थे तो 4 कंट्रीब्यूट किया था, x मेंबर है तो x कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, रुपीज़. नाउ टोटल अमाउंट कलेक्टेड क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना. सो सिमिलरली वी विल डू हियर, हम रुपीज़ x को नंबर ऑफ मेंबर्स x से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई x बाय x इट विल बिकम x स्क्वायर, राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट कलेक्टेड वाज द 8836, बट अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन जो हमने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स स्क्वायर है. सो कीप देम इक्वल रख देते हैं. रुपीज़ एक्स स्क्वायर को इक्वल रख दिया किसके, रुपीज़ 8836. नाउ स्टूडेंट्स ऑन बोथ द साइड्स वी हैव रुपीज़, सो रुपीज़ टू रुपीज़ कैन बी कैंसल आउट, राइट.
Now x square is equals to 8836, but you want to find the value of x. तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 8836. Find its square root here. 8836. Make the pairs. 9 9s are 81. Subtract 7. Copy down the next pair 36. Add these two. It will become 9 plus 9 18. Unit digit is 6 here. So it is possible in case of 4, right? So multiply it by 4. 4 4s are 16. 4 8s are 32 plus 1 33. 4 1s are 4 plus 3 7. So the square root of this 8836 is 94, which is the value of x. And what was x? x was the total member in the society. x का मतलब क्या था? total member in the society, which is 94. क्वेश्चन में क्या पूछा था? find the number of members in the society. क्वेश्चन में भी यही पूछा था. so this is your answer. total member in the society are 94, right? Next question, question number 17. In a basket there are 1250 flowers. एक बास्केट में कितने फ्लावर्स हैं? 1250 फ्लावर्स. ठीक है. अ मैन गोज फॉर वर्शिप एंड पुट एज मैनी फ्लावर्स एज देयर आर टेम्पल. मान लेते हैं हर एक टेम्पल में x फ्लावर पुट कर रहे हैं और x ही टेम्पल है, राइट? सो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होने चाहिए? x स्क्वायर. दिस इज 10, राइट? Thus he need 8 basket of flowers. अगर वो एक बास्केट में उन्होंने बोला है 1250 फ्लावर्स हैं एक बास्केट में, राइट? कितने बास्केट यूज़ हो रहे हैं? 8 बास्केट यूज़ हो रहे हैं, राइट? कितने बास्केट? 8 बास्केट. सो 8 बास्केट में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? हाउ विल यू फाइंड इट? यू विल मल्टीप्लाई देम. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 इज गिवन एंड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर, व्हाट डू? यू मल्टीप्लाई. Similarly, they have given the flowers in each basket. Flowers in each basket is 1250. Flowers in 8 baskets. 8 baskets के कैसे निकालेंगे? You will multiply 1250 by the 8, and this is equals to 10,000. Right? Now let the number of temple in the society. हमने क्या assume किया है? x. टेम्पल्स कितने हैं? x हैं. उन्होंने क्या बोला है? हर एक टेम्पल में कितने फ्लावर पुट कर रहे हैं? जितने नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं, तो दोनों इक्वल ही होंगे, राइट? सो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होने चाहिए? x मल्टीप्लाई x, राइट? यही कर रहे हैं ना. सो इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर. According to the number of temples which we have assumed, number of flowers are x square, but according to the given numbers of flower, total flowers are 10,000. So we can say that these two are equal. हम इनको equal put कर देंगे. x square is equals to 10,000. Now you want to find the value of x. So find its square root. Right? Students, as I told you that whenever 1 and the zeros are given, you don't need to find the square root using lengthy process. आपको lengthy process use करने की need ही नहीं है. Just write the 1 and make the pair of zeros. From each pair, take single zero. So the square root of this 10,000 is 100. This is the value of x. And in the question they were asking the number of temples in the city. Number of temples कितने थे? x assume किया ना number of temples हमने, right? Which is equals to 100. So number of temples are 100. This is your answer, right? So students, today in this class we have discussed from question number 14 to question number 17. In next class we will start with the question number 18. Till then, keep practicing and be safe at your home. Thank you. Have a good day.